Namaste. Welcome to the live session on genetics and health and disease. I'm your host, Dr. Sushila, and I'm delighted to have with us today Dr. Divya Agarwal, consultant medical genetics at Indraprastha Apollo Hospitals, Delhi. Dr. Divya has co-authored chapters on genetics in reputed pediatrics books and has 35 national and international publications. She is an active member of the Indian Academy of Pediatrics, Indian Academy of Medical Genetics, Society of Fetal Medicine and Indian Society of Inborn Errors of Metabolism. आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में. What is it? जेनेटिक टेस्ट कब कराने चाहिए और कैसे होते हैं ये टेस्ट? इससे फायदा क्या होता है? We are also streaming this session as a podcast by the name Hello Apollo on Spotify, iTunes, Google Podcast and Amazon Music. A big thank you to our viewers and listeners for tuning in and making us grow to such large numbers. It is my pleasure to welcome our very own Dr. Divya Agarwal to our live session and podcast. Over to you, Dr. Divya. Hello, good morning, good afternoon, all the audience, and thank you very much, Dr. Sushila, for such a kind introduction. And मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपोलो की जिन्होंने एक सेंसिटिव टॉपिक जैसा जेनेटिक्स इन हेल्थ एंड डिजीज को आज अपने लाइव सेशन के लिए चुना है. बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस जेनेटिक्स के बारे में. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको नहीं पता है, जनरल पब्लिक को नहीं पता है कि अभी जेनेटिक्स में या अनुवांशिक रोगों में कितना एडवांसमेंट हुआ है एंड हाउ इज जेनेटिक्स impacting our health and what can be done to prevent genetic diseases. So I hope this session is useful and it clears away a lot of doubts, and I hope that we are able to give some more clarity and give new information which is helpful for the general public as well as clinicians who might have tuned in for the session. So let us begin with the basic question, ma'am. What is DNA? What are genes and heredity? And what information do we get by studying genes? So genes are the basic unit of heredity. Heredity या अनुवांशिकता जिसको हम बोलते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पेरेंट्स जो गुण हमको देते हैं और जो कैरेक्टर्स generation by generation travel करते हैं from parents to children to grandchildren. That basic unit that transfers this information is a gene, and there are about 28,000 genes which are which code for all the proteins in our body, and every cell in our body is made up of these 28,000 genes. तो एक आसान एग्जाम्पल देने के लिए कि जैसे कोई भी बिल्डिंग ईंटों से बनी होती है, हमारा शरीर भी सेल्स से बना होता है और हर सेल में ये 28,000 जीन्स या गुण जिनको हम बोलते हैं वो गुणसूत्रों के ऊपर लगे हुए होते हैं. एंड जीन्स आर द मास्टर कोडर्स फॉर आवर सेल्स. दे कोड फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड for translation of the proteins and thereby the daily living of the human body. तो ये जीन्स के अंदर ये सारा इंफॉर्मेशन कोडेड होता है, राइट फ्रॉम कि हमारे बॉडी में कैसे डेवलपमेंट होगा हर ऑर्गन का एज अ चाइल्ड एंड देन हाउ ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स विल फंक्शन. So that's what a gene is. It is absolutely essential that we know, and now science and research have advanced to such an extent that we have been able to study all these 28,000 genes and sort of decode the information that these genes carry. And hence any sort of variation या कोई भी परिवर्तन अगर इन जीन्स में हुआ है किसी इंसान में तो हम उसको कैच कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमको इन गुणों का पूरा सीक्वेंस पता है, कैसे वो काम करते हैं. और अगर कोई भी नुक्स इन जीन्स में या गुण में आया है
तो वो हम आसानी से अब टेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जो गुण होते हैं इनका बहुत सारे डिसऑर्डर्स से रिलेशन होता है। सो दैट्स व्हाई यू नो द जेनेटिक डिसऑर्डर्स are whatever are being diagnosed are just the tip of the iceberg that we are seeing, and there are a lot of conditions which have a genetic basis which can be detected by testing for these genes. So मेरा अगला सवाल इन्हीं के बारे में है मैम। What are the common problems with a potential genetic cause? जी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जीन्स हमारे बॉडी के मास्टर कोडर्स होते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में जो कि बाहर की किसी रोग से नहीं हो रही है, जैसे इफ इट इज नॉट एन इन्फेक्शन, इफ इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, it is probably inherent in our body to develop those diseases, and there is probably an inherent defect in our genes which is leading to disease. So as हम लोग अब infection ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहे हैं और environmental diseases हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अंदरूनी या अनुवांशिक रोग जो बढ़ रहे हैं उनको अब हम ज्यादा अच्छे से पहचान पा रहे हैं। पहले क्या था कि पहले हम लोग इन्फेक्शन से ही जूझ रही थी। इंडिया जो है पहले ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, इन्फेक्शन से ही जूझ रहा था वर्ल्ड, बट एज यू नो विद द एडवांस्ड एंटीबायोटिक्स अब इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स और एनवायरमेंटल डिसऑर्डर्स कम हो गए हैं, और अब हम रिकग्नाइज कर पा रहे हैं कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स एक्चुअली उन कारणों से होते हैं जो हमारे इनहेरेंटली हमारे अंदर कोई जीन में डिफेक्ट है। टू गिव यू देयर आर मल्टीपल कंडीशंस जिसमें जेनेटिक्स का हेल्प और जेनेटिक टेस्टिंग का हमें हेल्प लेना पड़ता है, बट टू गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स, कोई भी अनुवांशिक रोग जो कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोई भी बेबी जब कंजेनिटल डिफेक्ट्स के साथ बॉर्न है, डेवलपमेंटल अबनॉर्मैलिटीज के साथ बॉर्न हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स जो जन्म से बच्चे में हैं, जैसे कोई कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है या कंजेनिटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है बच्चे में, लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, कंजेनाइटल ब्लाइंडनेस है, कंजेनाइटल हियरिंग लॉस है, बहुत सारे स्किन कंडीशंस हैं ऐसे जो कि इनहेरेंटली बच्चे बचपन में ही शुरू होते हैं, या कुछ कारण कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो बाद में शुरू होती हैं, अडल्टहुड में शुरू होती हैं, बट उनका cause is not environmental, it is inherent in the genes that has to be tested for. Then genetic testing is also very important in couples who are not being able to conceive, and in wherein you know there are not many, all the testing has been done and no particular hormonal cause has been found, no particular cause has been found. It has been now seen that these couples also might have an inherent cause which is leading to they being not able to conceive. Genetic testing is also important in cases जहाँ पे कि बार-बार miscarriages हो रहे हैं couple में, उनको एक healthy baby नहीं मिल पा रहा है, the baby is not getting developed. It has been seen that inherent कोई problems या तो couple में होते हैं या फिर बार-बार उनके embryo में आ रहे हैं जिसके वजह से miscarriages हो रहे हैं. A lot of disorders, cancers, we know that cancers किसी भी इंसान में develop हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि वो अल्कोहल लेते हों या जरूरी नहीं है कि वो स्मोकिंग करते हों. आजकल हम देखते हैं कि कैंसर किसी भी हेल्दी इंसान में डेवलप हो रहा होता है. स्पेशली देयर आर सम केसेस जिनमें की फैमिली हिस्ट्री कैंसर्स की होती है. इनमें भी जेनेटिक कॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसमें देखा गया है कि कोई पर्टिकुलर जीन्स जो कैंसर से रिलेटेड होते हैं उनमें चेंज आ जाता है, म्यूटेशन हो जाता है बाय चांस, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर ऑर्गन के सेल्स मल्टीप्लाई करते रहते हैं कंटिन्यूसली और वो कैंसर बना देते हैं. तो जीन टेस्टिंग या जेनेटिक्स का रोल अक्रॉस स्पेशलिटीज, नॉट टू मेंशन क्रॉनिक लिवर डिजीज, बहुत लिवर फेलियर, इडियोपैथिक और अनडायग्नोस्ड अनआइडेंटिफाइड जॉन्डिस किसी किसी लोगों में होता है, या रीनल फेलियर,
a lot of times, there is a chronic renal failure in an adult, or which may or may not be running in the family, for which no definite cause has been found. So now with research and with genetic testing, it has been seen that a lot of these causes are inherent to an individual. There are some mutations or changes which happen in the genes which lead to sort of all these problems. So my next question is, ma'am, who should consult a medical geneticist? Because this is a very crucial question which comes to mind. I mean, some of these problems, as you said, are not recognized. So who should be consulting a medical geneticist, and what kind of tests do you recommend? So actually ये question बहुत बारी हमसे पूछा जाता है. बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि मेडिकल जेनेटिसिस्ट्स डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि बहुत कम डॉक्टर्स ये स्पेशलिटी में आए हैं. इट इज़ अ रिलेटिवली न्यू स्पेशलिटी. इंडिया में मैं अगर बोलूँ तो 100-150 डॉक्टर्स हैं अभी जो जेनेटिक्स प्रैक्टिस करते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखते हैं. इनफैक्ट बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को, बहुत सारे जनरल फिजिशियंस को नहीं पता होता है कि कब उन्हें जेनेटिक डॉक्टर के पास भेजना है पेशेंट को, कब जेनेटिक टेस्टिंग एडवाइस करना है. तो कुछ केसेस में तो क्लियर कट इंडिकेशंस हैं और कुछ केसेस में बहुत क्लियर कट इंडिकेशंस नहीं है. जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई भी बच्चा है जिसमें जन्म से कोई विकार है, कोई भी कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हैं, उन बच्चों में इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट द जेनेटिक टेस्टिंग इज डन. जिन बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म माइट हैव अंडरलाइंग जेनेटिक सिंड्रोम्स. कुछ बच्चों जिनमें की कंजेनिटल हेल्थ हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, डेफनेस है. तो कुल मिलाकर जो भी कंजेनिटल प्रॉब्लम्स वाले बच्चे हैं, उन सभी में जेनेटिक टेस्टिंग कैन हेल्प टू रीच द डेफिनेटिव डायग्नोसिस, और एग्जैक्ट कारण क्या है उन बच्चों में बीमारी का, वो पता चल सकता है. देन कुछ केसेस जिनमें कि कैंसर्स फैमिली में रन कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो फैमिली में रन कर रही हैं. जैसे हम लोग सुनते हैं कि भाई हमारे दादाजी को भी कैंसर था, उनके भाई को भी कैंसर था, या हमारे दादाजी को कोई मेंटल प्रॉब्लम थी या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, उनको भी डिमेंशिया था, उनके सभी भाई बहनों में डिमेंशिया था. तो कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है जो आप सुनते हैं कि फैमिली में रन कर रही है, उनमें बहुत ज़रूरी होता है कि एक जेनेटिक एक्सपर्ट से मिलें ताकि वो कंडीशन एग्जैक्टली डायग्नोस हो पाए. जेनेटिक टेस्टिंग से हम एग्जैक्टली जेनेटिक नुक्स पकड़ सकते हैं और हम आगे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो कैसे आगे फैमिली में और प्रोपोगेट ना हो. अब जेनेटिक टेस्टिंग का सवाल जहाँ तक है, बहुत सारे जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक लैब्स अब खुल गए हैं हमारे कंट्री में, जो कि जेनेटिक टेस्ट हर जगह ऑफर करते हैं. पहले मतलब सिर्फ बड़े शहरों में, सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में ही ये लैब्स का सर्विसेज था, बट अभी हर गांव शहर से ये सैंपल पिक कर सकते हैं. तो देर आर अबाउट 50 odd genetic labs now running in the country who can collect sample, and we can actually now do genetic testing for we can test for all these 28,000 genes, and हम screen कर सकते हैं ये सारे 28,000 genes और देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे पेशेंट में. So can couples who are planning a pregnancy do genetic tests before or during pregnancy to assess the risk of abnormalities in their children? And so do these tests ensure that the offspring is healthy? Yeah. So this is a very, very relevant question. I'm very happy you asked this, because I have been stressing that a lot of congenital problems are genetic in origin. So a lot of times couples will present to obstetricians or gynecologists and say कि क्या हम ऐसा कोई टेस्ट कर सकते हैं जिनसे हमें पता चल पाए कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.
चाहे वो कपल्स प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले या फिर अर्ली इन प्रेगनेंसी वो पूछते हैं कि हमारे बच्चे में ऑटिज्म तो नहीं होगा, क्या कोई टेस्ट है हम बच्चे का आईक्यू जान सकें, या क्या केवल अल्ट्रासाउंड से ही हम देख सकते हैं बच्चे को, या हमको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमारे बच्चे के बारे में। तो काफ़ी कंडीशंस हैं जिनके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और प्रेगनेंसी से पहले भी कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हम कपल में कर सकते हैं टू सी वेदर दे आर एट एनी रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद एन इनहेरेंट जेनेटिक प्रॉब्लम। तो बहुत सारी जेनेटिक म्यूटेशंस या जेनेटिक नुक्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चे के बनने के टाइम पर आ जाते हैं बाय चांस बच्चे के जीन्स में। इन प्रॉब्लम्स के लिए हम प्रेगनेंसी में टेस्ट कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं मदर के जिनसे हम स्क्रीन कर सकते हैं कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए, जैसे कि थैलेसीमिया और डाउन सिंड्रोम। अगर हमें पता चलता है कि कोई फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर रन कर रहा है तो हम उसके लिए टेस्ट कर सकते हैं बच्चे में, before after confirming what is exactly the genetic defect. Then there are some general tests also, as I said, which can be done now in the couple, which sort of screen the couple for being carriers for some severe genetic disorders. तो सारी चीजें हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन जो सिवियर प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम कपल को टेस्ट कर सकते हैं कि वो वाहक या कैरियर तो नहीं है उस जीन प्रॉब्लम के, और अगर ऐसा निकल के आता है कि दे आर कैरियर्स फॉर सम जेनेटिक डिजीज, तब हम बच्चे का टेस्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और पता अगर चलता है कि ये एक सीवियर प्रॉब्लम है तो उसकी रोकथाम की जा सकती है। प्लस आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन हियर दैट न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, जब प्रेगनेंसी से पहले मैंने बताया, प्रेगनेंसी के दौरान मैंने बताया, और जब नवजात शिशु होता है, न्यूबॉर्न जब पैदा होता है, उस टाइम पर भी हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं टू सी whether the child is at risk of developing any sort of diseases during the lifetime. So that test is called newborn screening, और उसके बहुत सारे levels होते हैं। हम कुछ 6-7 कॉमन डिसऑर्डर्स के लिए टेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक एक्सपैंडेड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होता है जिसमें हम 2000 से अधिक बीमारियों के लिए टेस्ट कर सकते हैं। Sure. My next question is, should healthy people undergo genetic screening tests to know the development of, some of our NCDs like diabetes, obesity, hypercholesterolemia, cancers, etc.? So, यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे labs अभी आ गए हैं genetics में, and they are marketing some tests जिनसे कि वो ये बताते हैं कि हम आपको हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा उसका रिस्क बता सकते हैं, कि आपको कैंसर डेवलप होगा या नहीं होगा इसका हम रिस्क बता सकते हैं। Yes, the logical and the scientific answer is that yes, it can be done. We can do some sort of pre-symptomatic and predictive testing to tell in a healthy individual the risk of development of these disorders, but it is very important to have a consultation with a genetics doctor, because सभी टेस्ट जो ये कराए जाते हैं इनसे रिस्क निकल के आता है, and interpretation of these test results is not very straightforward. So it is very important that you consult a genetics doctor, let them take a family history, and then order these tests, by which it can be predicted to some extent that what the risk of development of certain disorders, genetic disorders during the lifetime. Sure. So if you could tell us about these genetic tests, how do they help? Where are they conducted? Are these tests expensive? क्या ये आम आदमी afford कर सकता है? Please throw some light on that. Sure.
सो जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो अभी जैसे मैंने बोला कि बहुत ही when we started off doing the genetic testing, it costed somewhere around 50 lakhs or 30 lakhs, or maybe then it slowly came down to 1 lakh. And अब क्योंकि हमारे कंट्री में ही ये टेस्ट हो जाते हैं, previously we were sending these samples outside of India for them to be tested. However, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 10-15 साल में there has been an upsurge of genetic laboratories all over the country, और अब हम ये टेस्ट अपने कंट्री में कर सकते हैं. The average cost of these tests is somewhere around, it varies depending upon what we are testing for, but it varies from 10,000 to 50,000. So 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के टेस्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम लोग क्या टेस्ट कर रहे हैं, और ये सभी ज्यादातर ब्लड टेस्ट होते हैं. ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में जब हमें बेबी का टेस्ट करना है तो हमें तब हम अल्ट्रासाउंड से बेबी का थोड़ा सैंपल लेकर उसको भी टेस्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट अभी हमको ब्लड भी लेने का जरूरत नहीं होता है, हम लोग सलाइवा से भी टेस्ट कर सकते हैं, सलाइवा से, हेयर से, बिकॉज आवर जीन्स और आवर DNA is present in all the tissues and it is uniformly present in all these tissues. Thank you so much, Dr. Divya. And as we draw to an end of this conversation, I would just like to ask you कि आप हमारे viewers and listeners को क्या message देना चाहेंगी? So I'm very thankful to all the audience who are seeing this session, and the only message that I would like to give is that there is not much awareness about genetics in health and disease, and you should ask your doctor about whether you need a genetic, you need to see a genetic expert. If at all there is any family history, come forth with that history with your doctor and ask them that can this be prevented in me, or can this be prevented in my child? What is it? I would like to know. और जब आप डॉक्टर को बोलेंगे कि हाँ हमें एक जेनेटिक एक्सपर्ट की प्रॉबेबली जरूरत है, तो वो अभी जेनेटिक डॉक्टर्स मौजूद हैं हर जगह. With Apollo, Indraprastha Apollo in Delhi has a whole genetics team. Apollo Hospitals has come up with Apollo Genomics Institutes, which are now there in all the major cities, as well as which are catering to all the surrounding areas also. So now Apollo ki genetics team is there in Calcutta, Navi Mumbai, Chennai, Hyderabad. So यहाँ पर सब जगह genetic ex doctors as well as genetic testing की सुविधा है. So reach out and it is a message for the doctors also, if any of them have tuned in, that to suspect genetic disorders is very important for now the treatment as well as prevention of these disorders. And contrary to the previous belief that genetic disorders are not treatable and preventable, अभी हमको पता है कि बहुत सारे नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं जेनेटिक डिजीजेस में, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन बीमारियों को. द फर्स्ट स्टेप टू दैट इज कि इनका डायग्नोस होना बहुत जरूरी है. Thank you so much, Dr. Divya, for joining us for this conversation and sharing such an important, aspect of medicine, such important information with us. To our listeners and viewers, if you need any professional help, you can reach out to us through the details mentioned below or through our social media handles. To know more about healthcare and our upcoming episodes, do follow, subscribe, and share this message to your family, friends, and loved ones. We'll be back with another specialist discussing another interesting topic next week. For any suggestions regarding the topic discussed today, DM us on our social media handle, Apollo Hospitals Delhi. We will be happy to connect. Till then, stay happy and healthy. Thank you.